ایک ماں نے دریا میں اپنا لال ڈال دیا تھا، ایک ظالم نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا تھا، لیکن جب اللہ کا پیغمبر اٹھتا ہے تو سمندر چیر جاتا ہے اور ظلم ڈوب جاتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم جنگ کی داستان ہے۔ کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہونے والی وہ تاریخی جنگ جہاں صبر، یقین اور اللہ کی قدرت جیت گئی، تکبر، ظلم اور جھوٹ مٹ گیا۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں ظلم کا راج تھا، ایک ایسی سرزمین تھی جہاں نہر نائل بہتی تھی، جہاں کے لوگ تہذیب میں بلند مگر روحانیت میں گر چکے تھے۔ آج کا ایجپٹ زمین پر ایک شخص حکومت کرتا تھا جو صرف اپنے آپ کو بادشاہ نہیں، خدا کہلاتا تھا۔ وہ تھا فرعون، ایسا حکمران جو تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، جسے نہ انسانیت کا لحاظ تھا نہ خدا کا خوف۔ فرعون اپنے تخت و تاج کو اتنا پیارا سمجھتا تھا کہ ہر اس شخص کو جو اس کے راج کو خطرہ بنا وہ مٹا دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم میں یہ عقیدہ رچا دیا تھا کہ وہی سب کچھ ہے، وہی رزاق، وہی خدا اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ ہم اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہیں ظلم بھی مہربانی لگتا اور فرعون کا جھوٹ بھی حقیقت۔ لیکن مصر میں ایک اور قوم بھی رہتی تھی، بانی اسرائیل۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ، مگر ان کا حال افسوسناک تھا۔ فرعون نے انہیں غلام بنایا ہوا تھا، ان پر ظلم کی انتہا تھی۔ صبح سے شام تک مزدوری، پتھر دھونا، عمارتیں اٹھانا اور فرعون کے محل بنانے میں اپنی زندگیاں خاپنا ان کا مقدر بن چکا تھا۔ ذلت، بیکار، بھوک اور بے باس لوگ، یہی تھے بانی اسرائیل۔ فرعون کے ظلم کا ایک منظر یاد رکھیے۔ ایک ماں اپنے بچے کو چھپ کرانے کے لیے دودھ بھی چپکے سے پلاتی تھی کہ کہیں کسی مصری افسر کو پتہ نہ چل جائے۔ فرعون کا خوفناک خواب۔ ایک رات فرعون نے نیند میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مصر کے محل جل رہے ہیں، اس کا تاج گر چکا ہے اور ایک نوجوان لڑکا بنی اسرائیل کا کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ نیند سے اٹھتے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، گھبراتا ہوا اپنے دربار کے کہیں تعبیر کرنے والے اور افسروں کو بلایا۔ اس نے اپنا خواب سنایا۔ اس شخص نے ایک ہی بات کہی، خواب اس بات کی دلالت کرتا ہے بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا تیرا تاج چھین لے گا، حکومت کا انتہا ہو جائے گی۔ پر فرعون کا رنگ اڑ گیا۔ قرآن ایک ایسا حکم دیا جو انسانی تاریخ کا سب سے ظالمانہ حکم بن گیا۔ بعد بانی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لڑکیاں زندہ رہیں گی۔ ہر گلی میں خون، ہر ماں کے ہاتھ خالی ہو گئے، زندگی موت کا ایک کھیل بن گئی۔ ہر ماں اپنے بچے کو چھپاتی تھی، ڈر کے مارے سانس نہیں لیتی تھی۔ یہ ظلم تھا، مگر اللہ کا پلان اس ظلم سے بڑھ کر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی وقت ایک مومنہ عورت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، نے ایک پیارا سا بچہ جنم دیا۔ اس کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا، ماں کا دل اس سے جدا نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اس ماں کو بھی یہ معلوم تھا کہ اگر کسی کو اس بچے کے بارے میں پتہ چلا تو فرعون کے سپاہی اسے قتل کر دیں گے۔ وہ روتی تھی، ڈرتی تھی، مگر اللہ سے دعا بھی کرتی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل کی، اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، گھبرانا مت، ہم اسے واپس لائیں گے، اسے اپنا نبی بنائیں گے۔ اور اس ماں نے آنکھوں میں آنسو، دل میں درد، لیکن بھروسہ صرف اللہ کا، اپنے لال کو ایک ٹوکری میں رکھ کر دریا نائل میں ڈال دیا۔ دریا کے لہروں نے اس بچے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا اور لہروں کا سفر شروع ہو گیا، اسی طرف جہاں اس بچے کو سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ فرعون کا محل اور حضرت آسیہ۔ جب دریا کے لہروں میں بہتے بہتے وہ ٹوکری فرعون کے محل کے پاس پہنچی تو حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی، دریا کے کنارے واک کر رہی تھی۔ اس نے ایک ٹوکری دیکھی، اس ٹوکری میں ایک بچہ تھا۔ اس کی معصومیت دیکھ کر آسیہ کا دل پگھل گیا۔ اس نے فوراً اس بچے کو اٹھایا۔ فرعون نے پوچھا، یہ کس کا بچہ ہے؟ حضرت آسیہ نے جواب دیا، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اسے قتل مت کرو۔ فرعون نے پہلے کچھ کہا نہیں، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اس بچے کے لیے نرمی ڈال دی، اور پھر وہی بچہ جو فرعون کے تخت کے لیے خطرہ تھا وہ اس کے گھر میں پالنے لگا۔ وہ اسی کے اللہ کی قدرت دیکھیے، فرعون نے جسے قتل کرنا چاہا وہ اسی کے محل میں اس کا سب سے بڑا دشمن بننے کے لیے پال رہا تھا۔ معجزات اور حق کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب طور کے پہاڑ پر
अल्लाह ताला का पैगाम सुना तो उनके दिल में रोशनी भर गई। वो पहली मर्तबा अपने रब का कलाम सुन रहे थे। उस रोशनी में एक नूर था, एक सुकून था और एक जिम्मेदारी भी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अल्लाह हूँ, तेरे रब का हुक्म है कि तू मिस्र जाए और फिरौन के सामने हक का पैगाम पेश करे। उसे कह दे कि वो बानी इसराइल को आज़ाद करे, जुल्म से बाज आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से अर्ज़ की, या अल्लाह, मेरा बोलना साफ नहीं, मुझे भाई हारून भी दे दें ताकि वो मेरी मदद करे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता की। अब दोनों भाई मूसा और हारून अल्लाह का पैगाम लेकर फिरौन के सामने जाने को तैयार थे। फिरौन के दरबार में पहली बार। फिरौन का दरबार एक आला शान और शोखी से भरा होता था। हर तरफ सुनहरी ताज, लंबे लंबे संगे मार मार के इमारत और हुरूर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दरबार में कदम रखा तो लोग हैरान हो गए। ये वही मूसा था जो कभी इस महल में परवरिश पाया था, लेकिन अब वो अल्लाह का पैगाम्बर बन चुका था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे रब की तरफ से आया हूँ। उसका हुक्म है कि तुम बनी इसराइल को आज़ाद कर दो, जुल्म से रुक जाओ। फिरौन हंस कर बोला, क्या तुम ही वो मूसा हो जो कभी मेरे महल में पालता था और अब मेरे सामने पैगाम्बर बनकर आया है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मोजज़ा दिखाया। अपनी लाठी जमीन पर फेंकी और वो एक बड़ा सांप बन गई। अपना हाथ अपनी बागल में डाला और निकाला तो वो चमक रहा था जैसे रोशनी का तूफान। फिरौन घबरा गया, लेकिन उसका हुरूर रोका। ये तो जदू है, मैं भी जदूगर बुलाता हूँ। जदूगर का मुकाबला। फिरौन ने मशहूर जदूगर बुलाए। पूरे मुल्क से 70 से ज्यादा जदूगर इकट्ठे किए गए। वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए। जदूगर कहने लगे, मूसा, पहले तू फेंके यहाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले फेंको। उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और जदू से वो सब सांप बन गई। लोग घबरा गए, डर गए, लेकिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी और वो असल में एक अजीब व गरीब सांप बन गया जो सब जदू निकल गया। जदू टूट गया, हक जीत गया। ईमान लाने वाले जदूगर सब जदूगर सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने कहा, मैंने तुम्हें इजाजत भी नहीं दी और तुम इस पर ईमान ले आए? मैं तुम्हारे हाथ और पांव उल्टे काट दूंगा, तुम सबको कत्ल करवा दूंगा। मगर जदूगर अब सच को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, तू जो करना चाहता है कर ले, हम अब सच से पीठ नहीं मोड़ेंगे। हमने अपने रब पर यकीन कर लिया है। आज़ाब का सिलसिला। फिरौन और उसके कौम ने जब हक का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने मिस्र पर एक के बाद एक आज़ाब भेजना शुरू किया। पानी खून बन गया। लोगों के साफ चश्मे, दरिया और नदियां, सब का पानी लाल खून में बदल गया। न वो पानी पी सकते थे, न किसी काम में ला सकते थे। मेंढक छा गए, हर जगह मेंढक ही मेंढक। रोटियों में, कपड़ों में, बिस्तार में, हर तरफ से घूंघट उठाकर निकलते। माखियां का तूफान, हजारों लाखों माखियां। आंख, नाक, खाना, सब जगह माखियां छा गई। कहत और आंधियां, जमीन से सब कुछ गायब। फसलें खुश्क, हवाएं गर्द व गुबार से भर गई। अंधेरा इतना गहरा मिस्र में 3 दिन तक ऐसी तरीकी छाई कि कोई किसी को न देख सका न हिल सका। लेकिन बनी इसराइल के इलाकों में रोशनी थी। हर दफा फिरौन कहता, मूसा, अपने रब से दुआ करो, आज़ाब हटा दो, मैं मान लूंगा। लेकिन जैसे ही आज़ाब हटता, फिरौन फिर मुकर जाता। साजिश और आखिरी फैसला। फिरौन अब मूसा अलैहिस्सलाम से तांग आ गया था। उसने फैसला किया, मैं मूसा को मार दूंगा वरना ही मेरी हुकूमत गिराएगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, रात के वक्त अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, हम तुम्हें बचाएंगे। और ये था वो वक्त जब अल्लाह ताला ने अपने पैगाम्बर के लिए मुजीज़ा तैयार किया। रात का सफ़र, आज़ादी की उम्मीद। एक रात जब सब सो रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म है कि हम रात ही रात मिस्र छोड़ दें। सुबह होने से पहले हमें निकालना होगा। ये वो लोग थे जो सालों से जुल्म साते आए थे, जिनके कंधों पर फिरौन का बोझ था। आज उनकी आंखों में पहली दफ़ा रोशनी थी, आज़ादी का नूर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें कदम ब कदम लेकर मिस्र से निकालना शुरू किया। रात के अंधेरे में वो सब कदम बढ़ा रहे थे। उनकी मंजिलें नामालूम थी, लेकिन रहनुमा अल्लाह का पैगाम्बर था। फिरौन को सुबह खबर मिली कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मिस्र से निकल चुकी है। उसका गुरूर फिर बोल उठा, मैं उन सबको वापस लाऊंगा या कत्ल कर दूंगा।
उसने अपना फौज तैयार की। हजारों सावर, लश्कर, तीर और तलवार, और खुद फिरौन अपने ताज में सफ में था। वो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे भागे और समुंदर के किनारे तक पहुंच गए। समुंदर के किनारे आखिरी उम्मीद। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने समुंदर का किनारा देखा। आगे समुंदर था गहरा, लहरों से भरा। पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा था। तलवारें चमक रही थे, घोड़े दौड़ रहे थे। लोग घबरा गए, रोने लगे। मूसा, अब क्या होगा? हम तो फंस गए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी उठाई और यकीन से कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी समुंदर पर मरी। समुंदर का मोजिज़ा रास्ता बन गया। अल्लाह की कुदरत का जलवा जाहिर हुआ। समुंदर चीर गया। दोनों तरफ पानी दीवार की तरह खड़ा हो गया। बीच में एक रास्ता बन गया, बिल्कुल सूखा ज़मीन जैसा। बानी इसराइल ने अल्लाह के पैगंबर के पीछे पीछे उस रास्ते पर कदम रखा। वो लोग जो सालों से गुलाम थे, आज समुंदर के बीच आज़ादी की तरफ बढ़ रहे थे। फिरौन का अंजाम, गुरूर की मौत। फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम समुंदर के बीच से गुजारते जा रहे हैं। उसने भी लश्कर के साथ वही रास्ता इख्तियार किया। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग दूसरी तरफ पहुंच गए, अल्लाह ताला ने समुंदर को वापस मिला दिया। समुंदर की लहरों ने फिरौन और उसके लश्कर को ले लिया। सब कुछ डूब गया। जब फिरौन डूबने लगा, उसने चीख कर कहा, मैं उस रब पर ईमान लाता हूं जो मूसा और हारून का रब है। लेकिन अल्लाह ताला का जवाब आया, अब जब तू डूब रहा है और पहले जिंदगी भर तू बगावत करता रहा, अब ईमान का फायदा नहीं। फिरौन का जिस्म समुंदर में डूब गया, लेकिन उसकी मिसाल रह गई, एक कौम की नई जिंदगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ समुंदर के दूसरी तरफ निकाल आए। अब वो आज़ाद थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को रोज़ी दी, हिदायत दी, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर के पहाड़ पर बुलाकर तौरत अता की। लेकिन यही कौम जिसे अल्लाह ने आज़ादी दी थी, जिसे मोजज़त दिखाए गए, कभी कभी फिर शिर्क और गुमराही की तरफ पलट जाती। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार उन्हें सब्र और शुक्र की नसीहत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये एक रूहानी सबक है, हक और बातिल की जंग का। जब जुल्म बढ़ता है तो अल्लाह हक को उभर कर लाता है। जिसके पास यकीन होता है उसके लिए समुंदर भी चीर जाता है, और जिसके दिल में हुरूर होता है उसका अंजाम फिरौन जैसा होता है। आज भी दुनिया में छोटे छोटे फिरौन हैं, जुल्म करते हैं, अपने आप को सब कुछ समझते हैं, मगर वक्त आता है जब अल्लाह उन्हें गिरा देता है और मूसा अलैहिस्सलाम जैसे सब्र वाले जीत जाते हैं। जुल्म जितना भी ताकतवर हो, हक कभी हारता नहीं। जिसके पास यकीन हो उसके लिए समुंदर भी रास्ता बन जाता है। अगर आपको ये पैगंबर की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, और हमारे चैनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक आती रहें और भी इस्लामी तरीक़ी कहानियाँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।